हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लैट 2022 का फॉर्म भरने का प्लानिंग कर रहे हैं तो डोंट मिस आउट टू यू कैन से वॉच अवर वीडियो अबाउट हाउ टू फिल दी क्लैट फॉर्म. ओके, नाउ this is very important, you can say, module. In this module I'm going to discuss about varieties of the categories and the number of seats at various NLUs. We will get complete information about certain categories, and that will help us to take decisions that should I go and apply for a particular category or not if I belong to that. Okay, ठीक है दोस्तों, समझते हैं कि एग्जैक्टली एनएलयू सीट्स का मैट्रिक्स क्या है. वी हैव वर्कड अ लॉट ऑन दिस. ठीक है, अलग अलग कॉलेजेस के साइट पे जाकर वी हैव डेवलप्ड डिटेल्ड यू कैन से ब्रेकअप ऑफ ईच एंड एवरी यू कैन से एनएलयू में नंबर ऑफ सीट्स कितनी, कौन सा कोर्स अवेलेबल है और वो जो यू कैन से रिजर्वेशन है, ठीक है, वो किस तरीके का है. ठीक है, द एम of this session is to give you clarity about the number of seats. So when you get clarity, you know that I have to work hard, and that too how much. Yes or no? At the end of the day, this is a competitive examination ka scenario. Together 22 NLUs have approximately 2600 के आजू बाजू सीट्स है, आउट ऑफ विच कितनी आपके लिए है. ठीक है दोस्तों, नॉट ऑल सीट्स आर फॉर ऑल इंडिया लेवल. Very few seats are for all India level. Okay, so that is also giving us clarity कि भैया क्लैट में हमें करना क्या है. Is that okay with everyone? Great. So let's start our journey to understand. So दोस्तों, आपने देखा होगा कल मैंने जो एक मॉड्यूल बनाया था, उस मॉड्यूल में मैंने आपको इस तरीके से ब्रेकअप दिया था. एक बार मैं आपको इस ब्रेकअप के साथ थोड़ा कंफर्ट करवा लूं, एंड देन आई विल मेक माई यू कैन से आर्ग्यूमेंट्स ऑन दिस स्ट्रक्चर एंड विल हेल्प यू आउट विथ रिस्पेक्ट टू क्या क्या आपको ध्यान रखना है. सबसे पहले द स्ट्रक्चर हियर इज वी आर पुटिंग नेम ऑफ द कॉलेज, which course this college offers. Okay, how many seats are available? I remind you one more time, NLSIU Bangalore has increased their number of seats by 60 this year. 50% increment, which is huge. Okay, so that is 180 total seats, out of which general seats are for 89 students, which is 89 for all general students, out of which 23 seats are for Karnataka domicile, which means 89 minus 23, okay, that's the only number of, you can say, seats, which is 66 seats are for all India category. Yes, you heard it right, for all India category. So basically, let's say you are sitting in Madhya Pradesh, ठीक है, you are sitting in Rajasthan, you are sitting in Bihar, Uttar Pradesh, Assam, ठीक है, Gujarat, Maharashtra, and then you are targeting NLSIU Bangalore, then it is only 66 seats if you are from general category. If you are from SC category, then you have 20 seats available if you are not from Karnataka. Okay, remember this. Similarly, if you are from ST category, then if you are not from Karnataka, then you have 10 seats only. For OBC candidate, okay, this is 30 minus 22 seats are available. For EWS category students, it is 8 seats are available. ठीक है, and for women reservation, remember this. What is the meaning of women reservation? What is the meaning of this PWD reservation? What is the meaning of domicile? Let's understand this. Okay, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं. There are two concepts. One is called vertical reservation. Second is called horizontal reservation. ठीक है, so when a college has, let's say, 120 seats, ठीक है, they have a vertical reservation in the name of general students, SC, ST, OBC and EWS. है ना. EWS तो भैया सुप्रीम कोर्ट क्या जिम्मे पे है, अभी क्या होगा विल हैव टू वेट एंड वॉच. ठीक है, बेचारे नीट वाले फंसे पड़े हैं, हमारे साथ क्या होगा वो तो आज शाम तक या कल तक पता चल जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया वर्टिकल डिवीजन. लेट अस अज्यूम कि इन्होंने इसको 60 में डिवाइड कर दिया, है ना. मैं एक रफ नंबर लेके चल रहा हूँ. ठीक है, ये कुछ 20 नंबर है, ठीक है, ये कुछ 20 नंबर है, बराबर है. देन दिस इज सम अराउंड 10 नंबर एंड दिस इज 10. रफ नंबर है, मैंने एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं लिया. ठीक है, एनीवे, सो दिस इज व्हाट द वर्टिकल डिवीजन. नाउ दे से वी हैव अ डोमिसाइल. Let us say they say we have a
50% domicile. That generally goes in a horizontal reservation, which means in each category domicile 60 का 30, 10, 10, 5, 5 ये हो जाएगा डोमिसाइल, विच मीन्स फॉर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स, ठीक है, कितनी सीटें बचेगी? फॉर जनरल 30, एससी के लिए 10, एसटी के लिए 10, ये 5 और ये 5, ये ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए उनकी कैटेगरी के मुताबिक इतनी सीटें बचेगी. दैट इज कॉल्ड रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, विच इज ऑन द सेम लाइन for women reservation. If a college says we have a women reservation, great. So women reservation 18%, 18% of what? Okay, 18% of all categories. Okay, so which means भैया डोमिसाइल में भी 18%, ठीक है, जितनी सीटें होगी डोमिसाइल में वो, ठीक है, और अगेन से ऑल इंडिया में भी जितनी सीटें होगी उसमें भी, ठीक है, उनका अगेन से रिजर्वेशन बनेगा. इज दैट कंफर्टेबल? मैं आपको आई रिपीट वन मोर टाइम, टोटल नंबर ऑफ सीट जितनी है, ठीक है, उसमें सबसे पहले वर्टिकल डिवीजन लगता है, ठीक है, वर्टिकल डिवीजन के बाद अगेन से जो भी कैटेगरी है, भले वो डोमिसाइल हो, ठीक है, तो डोमिसाइल में भी रिजर्वेशन, विमेन तो भी वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, मतलब हर कैटेगरी में वो रिजर्वेशन लगेगा. विच मीन्स अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे ऑल इंडिया सीट्स कितनी मिलेगी, एक मिनट रुक जाइए. आई एम गोइंग टू टेल यू. इफ यू आर यू कैन से जनरल कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट, ठीक है, तो आपके लिए कितनी सीटें हैं वो हम बात करेंगे, ठीक है. 2 मिनट रुक जाते हैं, ठीक है. चलिए, फिर आता है आपका रिजर्वेशन फॉर एससी, एसटी, ओबीसी, है ना, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, एससीबीसी, नॉमेडिक ट्राइब, बहुत सारी कैटेगरीज है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग कैटेगरी है, ठीक है. सो दोस्तों, यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आप कौन सी कैटेगरी में हो. प्लीज इनसे आंखें बंद करके फॉर्म न भरे, सोच समझ के फॉर्म भरे, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू पुट अगेन से राइट इंफॉर्मेशन टू क्लैट. क्योंकि जब आप अपने फॉर्म भरने में सही इंफॉर्मेशन दोगे तो आपका जब सिलेक्शन आएगा, ठीक है, आपको आपकी कैटेगरी में, ठीक है, आपको जो रैंक आएगा उसके बेसिस के ऊपर आपको सीटें असाइन होगी. सिंपल है. यस और नो? इज दैट वेरी क्लियर? सो डोंट मिस आउट ऑन इट. ठीक है, आपको करना क्या है, जनरली एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, एससीबीसी, एनटी के लिए ज्यादातर स्टेट वाइज अलग अलग रिजर्वेशन है. बहुत कम एनएलयूज ऑल इंडिया एससी एसटी का गणित लगाती है. ठीक है, बहुत बार एनएलयूज बोलती है वी ओनली काउंट एससी एसटी ऑफ आवर स्टेट, वी डोंट काउंट एससी एसटी ऑफ अदर स्टेट्स. इज दैट वेरी क्लियर? ठीक है. सो दोस्तों, आपको करना क्या है कि आपको आपके स्टेट की जो एनएलयू है वहां पे आप अपना से कैटेगरी अच्छे से देखिए और आप वहां पे अप्लाई करिए. सिमिलरली डोमिसाइल, आप अपने स्टेट का डोमिसाइल का गणित देखिए. जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ठीक है, दिस बैंगलोर के पास ऑन एन एवरेज, जस्ट अ मिनट, बैंगलोर के पास ऑन एन एवरेज यू कैन से उनके स्टेट का डोमिसाइल है 25%. ठीक है, दैट इज व्हाट दे अप्लाई. ओके, दैट इज व्हाट दे अप्लाई. सो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट यू कैन से डोमिसाइल. डोमिसाइल आपने जब अप्लाई किया, यू नीड अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट. प्लीज ask your parents to make this domicile certificate. There are rules available for domicile which are mentioned on the respective NLU के application में. ठीक है, प्लीज देखिएगा. I'll show you कहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा. ओके, ग्रेट. ये रहे आपके सामने कुछ डेटा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है. ध्यान से देखिए क्या दिया गया है. जनरल ऑल इंडिया कैटेगरी की ये सीटें हैं, सभी एनएलयू को मिलाकर कितनी है, 1197. These are general all India category seat minus domicile minus all reservation, SC, ST, OBC, PWD सब हमने माइनस कर दिया. ठीक है, हाँ, this 1197 includes women reservation, वो हमने माइनस नहीं किया है. ओके, इज दैट वेरी क्लियर? ठीक है दोस्तों, काफी मेहनत लगी. ठीक है, करीबन 3 दिन लगे इसको पूरा अच्छे से समझाने में, पूरा अच्छे से टेबल बनाने में, एक एक डेटा निकालने में. बट भाई काम की चीज़ है ना. ये जो वीडियो है वो इतना काम का है ना, और ये जो आपके सामने डेटा है वो इतना काम का है दैट यू आर गोइंग टू गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट इट. ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. फिर एनआरआई और एनआरआई स्पॉन्सर्ड के लिए कितनी सीट्स है, 232.
दोस्तों अगर आप एनआरआई स्पॉन्सर्ड के बारे में कुछ again से अप्लाई करना चाहते हैं, सो डोंट मिस आउट टू वॉच अवर अनदर वीडियो, ठीक है ना। आज ही उसका एक वीडियो आया है, प्लीज उसको देखिएगा। ओके ग्रेट। जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए भी अलग से वीडियो डाला है, ठीक है, 38 सीट्स है, ठीक है, प्लीज गो थ्रू दैट। फिर एससी शेड्यूल्ड कास्ट, हम एज्यूम करके चलते हैं कि शेड्यूल कास्ट के अगर स्टूडेंट्स हैं या शेड्यूल ट्राइब के हैं या ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट हैं या ओबीसी के स्टूडेंट हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ऑल इंडिया सभी एनएलयू में हमारे लिए रिजर्वेशन है। ना 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 ना, नहीं, ऐसा नहीं। जैसे शेड्यूल्ड कास्ट में जो रिजर्वेशन है, कुछ कुछ एनएलयू में इट इज ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट, कुछ एनएलयू में इट इज शेड्यूल्ड कास्ट ऑफ ओनली दैट पर्टिकुलर स्टेट। फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश बोलता है वी ओनली कंसिडर SC ST OBC ऑफ उत्तर प्रदेश, वी ओनली कंसिडर SC ST OBC ऑफ बिहार, दैट इज व्हाट रांची सेज, ठीक है। इज दैट कंफर्टेबल? ठीक है, सॉरी पटना सेज, इज दैट वेरी कंफर्टेबल फॉर एवरीवन? ग्रेट, ठीक है। तो भैया SC और ST में बहुत ही कम इंस्टीट्यूट के पास ऑल इंडिया रिजर्वेशन है, विच मीन्स आपको, अगर आप SC ST कैटेगरी में हो तो आपको आपके स्टेट में अपनी कैटेगरी में टॉप करना है, ठीक है, तो जाकर आपको अच्छा एक एनएलयू मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इज दैट वेरी क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो विच मीन्स आपको जब फॉर्म भरेंगे तो आपको आपका स्टेट का ओरिजिन बताना जरूरी है, ठीक है, वो मिस नहीं करिएगा। अगर आपने आपका स्टेट का ओरिजिन बताना मिस कर दिया तो आपको SC ST वाला जो बेनिफिट है वो शायद ना मिले। इज दैट वेरी क्लियर टू एवरीवन? ग्रेट। EWS कोटा इज नॉट एवरीवेयर, इट इज 120 सीट्स ओनली, ठीक है। जनरली स्टेट लेवल रिजर्वेशन इज एप्लीकेबल देयर एज वेल, ठीक है, विच मीन्स यू थिंक कि लुक आई एम फ्रॉम EWS, आई एम गोइंग टू गेट यू कैन से 10% रिजर्वेशन बिकॉज आई हैव स्टडीड लॉ में मुझे पता था आर्टिकल नंबर 15 आर्टिकल नंबर 16 के मुताबिक तो मुझे मिलना चाहिए। भाई साहब नहीं है, ठीक है, बराबर है। लॉ अच्छे से पढ़ा नहीं है, हमें सिर्फ जनरल आइडिया था, इसकी वजह से हमने मान लिया कि 10% मिलेगा, पर 10% कैसे मिलेगा, ठीक है, तो वो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, OBC सेम स्टफ, SC ST OBC। दोस्तों SC ST OBC के अलावा बहुत सारे और रिजर्वेशन है, ठीक है ना। नोमेडिक ट्राइब आ गया, नोमेडिक ट्राइब 1, नोमेडिक ट्राइब 2, नोमेडिक ट्राइब 3। महाराष्ट्र में तो भरपूर रिजर्वेशन है भैया, देख लेना सोच समझ के, है ना। मैं आपको बताऊंगा कहां से आपको ये देखना है, मैंने भी आपके लिए पूरा लिस्ट बना के रखा है। Women reservation is a horizontal reservation. Not all NLUs have women reservation, but when the you can say NLU has a women reservation, it is applicable on a horizontal front, which means it is general, SC ST OBC है ना, EWS सब में वो women reservation available होगा। Is that comfortable for everyone? Great, ये नंबर आपके सामने क्लियर है, वेरी गुड। सो दोस्तों ये देखिए, हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हम जब क्लैट की तैयारी करें तो हमारे सामने जो सीट्स है उसका नंबर क्या है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो व्हाई आई एम डूइंग दिस, है ना। इट इज ओनली फॉर दिस पर्पस दैट यू शुड नो दैट व्हाट नंबर इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू। You are looking at 22 NLUs and you don't know how many seats are there. That's not done. Why it is not done? Because you must know कि आपको कितना रैंक लाना है। You must know कि आप कितने बच्चों में compete कर रहे हो। You must know कि इतने बच्चों में से आपको टॉप में क्या रैंक लाना है, आपके कैटेगरी में क्या करना है। लास्ट ईयर के कट ऑफ से लास्ट ईयर से कोई फायदा होने वाला नहीं है। Yes or no? So it is always important for you to know that look, when you are preparing for you can say CLAT, okay, you have to be in top 1000 rank. If you are not in top 1000 rank, then you are not going to get you can say any NLU if you are from general category. Is that comfortable for you? Great. दोस्तों, however, it is very important for all of us to know that हमें बस वो रैंक लेके नहीं चलना है, हमें ये लेके नहीं चलना है कि अच्छा 1000 के लिए भाई 90 के ऊपर मार्क्स आ जाएंगे ना तो भी काम हो जाएगा, सो आई विल टारगेट 90। गलत। मैं चाहता हूं कि ऑलवेज यू फोकस ऑन मैक्सिमाइजिंग
the score, you can say strategy. Whenever you appear for the exam, you try to maximize the score. You don't target a particular score, मुझे इतना ही चाहिए. आपकी जो कैपेबिलिटी है, सामने जो पेपर है, उनमें से मैक्सिमम आप कितना निकाल सकते हो, दैट्स व्हाट यू फोकस ऑन. ठीक है. एनीवे, वी कांट प्रेडिक्ट द कैटेगरी वाइज कट ऑफ. Yes or no? We can't predict that. It all depends on the कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने अपियर किया. ठीक है. पेपर कितना टफ था. ठीक है ना. बच्चों की तैयारी कैसे थी. ठीक है. क्या बच्चे ओमिक्रॉन से अफेक्टेड हुए थे. बहुत सारी चीज़ें. ठीक है. सो देयर बाय वी आर नॉट एबल टू डू दैट. Thereby, it is very important that you should put all your 100% efforts, ठीक है, and maximize your score. Try to learn the best concept. Try to learn the best methods. Try to learn the best skills for cracking this examination. ठीक है, बराबर. ये नंबर बताने का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको पता रहे that you have to be in top rank. अगर आप टॉप में नहीं हो, कोई भी कैटेगरी आपकी, ठीक है, आपकी कैटेगरी कोई भी है, आपको टॉप में रहना है. दैट इज द गेम. सिंपल. अगर आप टॉप में नहीं हो तो कोई फायदा नहीं है. ठीक है. एंड एनीवे, यू हैव टू स्टडी ऑल दिस कंसेप्ट्स वेल, बिकॉज दोस्तों एनएलयू के आगे भी बहुत बड़ा जहां बाकी है, जहां पे आपको स्किल अभी अगर अच्छे से डेवलप करी होगी, अभी से अपने आप को, अपने ब्रेन को ट्रेन किया होगा दैट आई हैव टू, यू कैन से, लुक एट अ टारगेट एंड वर्क हार्ड, मैक्सिमाइज करना चाहिए. ये सब अगर आपने किया होगा दोस्तों, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है. ठीक है. सो दोस्तों, ये मैंने आपको कल बताया था. ठीक है. ये था आपका NLSIU बैंगलोर. अब आपको करना क्या है. ठीक है दोस्तों, ये देखिए, मैंने आपके लिए जो NLSIU बैंगलोर ने एक लिस्ट बनाई है, उसी लिस्ट को ब्रेकअप करके नंबर ऑफ सीट्स आपके सामने लेकर आया है. इन्होंने परसेंटेज में दिए थे. ठीक है. उनके पास 180 सीटें हैं, 180, and I have converted them into percentage and presented it to you. Okay, you can very well get all these details, ठीक है, from consortium of NLU का site. ठीक है. and you can go to this place called participating universities. ये रहा आपके सामने पूरा लिस्ट निकलेगा. पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी, वहां पे उनका डाउनलोड ब्रोशर है. ठीक है. सबका दिया गया है. बहुत अच्छा ब्रोशर बनाया इन्होंने. ठीक है. हमने उसी ब्रोशर में से ये पूरा डेटा आपके लिए बनाया है. ठीक है. तो प्लीज गो थ्रू दैट. ओके. आई होप इट इज कंफर्टेबल. NLSIU बैंगलोर का 2,88,000 फीस है और 180 सीट्स अवेलेबल है. नालसार हैदराबाद के अंदर 132 सीट्स है. फीस है 1,45,000. नो NRI सीट्स, नो जम्मू कश्मीर. विमेन रिजर्वेशन इज 30%. ठीक है, विच इज रिजनेबली वेरी गुड, विच मीन्स द गर्ल्स, ठीक है, are going to get some around 20 seats in Nalsar, Hyderabad. Okay, out of 66 जनरल कैटेगरी, they are going to get those seats. ये देखिए, इन्होंने ऐसे बैकअप करके दिया हुआ है. ठीक है. अनरिजर्व्ड 60 सीट्स, उसमें से नंबर ऑफ सीट्स फॉर ऑल इंडिया कैंडिडेट 51. फॉर तेलंगाना स्टेट्स इट इज 15 सीट्स. ओके, इज दैट कंफर्टेबल फॉर एवरीवन. ठीक है. तो ऐसा उन्होंने दिया हुआ है, बराबर. उसी का मैंने यहाँ पे ब्रेकअप आपके सामने दिया है. आपको एक जगह पे सब कुछ कंपाइल्ड वर्जन मिलेगा. I'm going to give you this PDF on ProTalent's Telegram channel. Please take it from it. This is very important information. ठीक है. I've also ensured that there is, wherever NRI seats are available, we have mentioned NRI fees as well. The NRI fees for Bhopal is $10,000 plus 1 lakh rupees per annum, while the fees normally is 2,36,000. So if you work hard, ठीक है, you are saving a lot of money of your parents. If you are not working hard, ठीक है, then you are spending a lot of money of your parents. ठीक है. That's how the game is. Okay, domicile 50% है. Women के लिए 30 seats available है. 50% domicile. Okay, that's very important. And that domicile is applicable only for BA LLB course. For BSc LLB honors course में कोई domicile नहीं है. Is that comfortable for everyone? Great. ठीक है दोस्तों. सिमिलरली WBNUJS कोलकाता के अंदर 2 प्रोग्राम, BA BSc, दोनों का कंबाइन नंबर ऑफ सीट्स आर 132. ठीक है. दे डोंट हैव, यू कैन से, विमेन रिजर्वेशन, बट दे हैव अ डोमिसाइल which is for Kolkata, that is West Bengal students, 31%. Okay, and one interesting thing, look at this, 10 seats are for SC and domicile is 10, which means all, you can say, reservation
ऑफ SC ST है ना, OBC, ऑल दिस ऑफ ओनली वेस्ट बंगाल एंड नो अदर स्टेट। अगर आप महाराष्ट्र में बैठे हो, आप MP में बैठे हो, आप गुजरात में बैठे हो और आपको लगता है कि मैं SC कैटेगरी का हूं और मुझे एक ऐसे रिजर्वेशन मिलेगा WB and UJS में, सॉरी आपको नहीं मिलने वाला है। इज दैट ओके विद एवरीवन? ग्रेट, ठीक है। NLU जोधपुर के पास कोई एक ऐसे डोमिसाइल रिजर्वेशन नहीं है, कोई वुमेन रिजर्वेशन नहीं है, उनकी फीस है 1,44,000। NRI सीट है उनके पास 7.5 लाख रुपये में, ठीक है दोस्तों। NRI के लिए आपको क्लैट देना होगा और अलग से आपको उसका फॉर्म भरना पड़ेगा। आई एम गोइंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर इट, प्लीज गो थ्रू दैट, ओके ग्रेट। सिमिलरली रायपुर के पास भी डोमिसाइल है, 85 सीट्स, 50% डोमिसाइल, ह्यूज। प्लीज उसका यूज करिए दोस्तों, बिल्कुल इसका यूज करिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप उसकी यूज नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। गांधीनगर के पास बहुत सारे कोर्सेज, BA LLB, BCom LLB, BBA LLB, BSc LLB, BSW LLB, और उनके पास एक से डोमिसाइल के करीबन एक से 39 सीट्स है। ये 0 नहीं होना चाहिए था, ये 39 होना चाहिए था। वुमेन रिजर्वेशन 30% है। NRI सीट 18 है। NRI का फीस काफ़ी ज़्यादा है, पर एनम 1,32,000 प्लस 12,500 US dollars. Okay, this is what the fee structure for GNLU. Okay, लखनऊ RMNLU के पास एक ऐसे डोमिसाइल का रिजर्वेशन है। वैसे जो भी रिजर्वेशन है वो सिर्फ यूपी के लिए है, दैट इज डोमिसाइल। वैसे जनरल कैटेगरी में कोई रिजर्वेशन नहीं है, बराबर है, विच मीन्स ये 80 सीट सबके लिए है। पर बाकी जो सीटें हैं, ओके, ये सब आप देखेंगे दैट इज अ रिजर्वेशन ओनली एंड ओनली फॉर यूपी, नथिंग एल्स। ओके, सिमिलरली अगेन से दिस पंजाब के अंदर आप देखें तो पंजाब में डोमिसाइल का 18% है, सो दिस 18% इज एप्लीकेबल इन ईच कैटेगरी। दे डोंट हैव OBC, दे डोंट हैव EWS, ओके, हाउएवर दे हैव NRI सीट, ठीक है। NRI में $6,000 का इनका अगेन से फीस है, प्लस 1,20,000 रुपीज, ओके, पर एनम इज द फीस, ओके, ठीक है, ग्रेट। सिमिलरली बिहार offers only reservation for Bihari student which is SC ST and OBC, उनका मतलब है ही नहीं कोई रिजर्वेशन, सीधा OBC सभी कैटेगरी यहीं पे आ गई, ठीक है। OBC में दे क्लियरली मेंशन, ये ध्यान रखना, OBC में दे क्लियरली मेंशन दैट इट इज अ पार्ट ऑफ बिहार विच इज वेरी क्रूशियल। कोई डोमिसाइल नहीं है, 4 वुमेन सीट रिजर्व्ड है, कोई NRI नहीं है, ठीक है। कोची के अंदर, ठीक है, सेम स्टाफ जो भी हमने आपको बताया, 31 सीट्स है, बराबर है, और उसमें डोमिसाइल है, ओके ग्रेट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारे पास अवेलेबल है कटक का BLLB BBLLB प्रोग्राम, दोनों की सीटें अलग अलग, 120 सीटें फॉर BA और 60 सीट्स आर फॉर BBA LLB, और 25% रिजर्वेशन गोज इन both the format. They don't have OBC, they don't have EWS, so keep that in mind. They have NRI seat, NRI का फीस है उनका 89,000 rupees per annum plus $6,000. Okay, is that very comfortable? Great. ठीक है, रांची के पास सिमिलरली दे हैव 50% सीट्स रिजर्व्ड फॉर डोमिसाइल, नो वुमेन रिजर्वेशन, 18 सीट्स आर अवेलेबल फॉर NRI एंड फीस काफ़ी कम है फॉर NRI, इट इज़ 4,54,000 रुपीज़, ठीक है। तो अगर आप रांची सोच रहे, NRI सोच रहे, तो आपको शायद मिलेगा। NRI से फ़ायदा क्या होता है? NRI से आपको ना थोड़ा सा लेकिन से जो क्या बोलते हैं जो कट ऑफ है वो थोड़ा बेनिफिट होता है, ठीक है। पर आई बिलीव नाउ आई एम मेकिंग दिस वीडियो, लार्ज नंबर ऑफ यू विल मेक दिस NRI, क्योंकि अभी तक लोगों के पास वो इन्फॉर्मेशन थी नहीं। अब आप कहेंगे तो NRI में भी तगड़ी कंपटीशन आएगी, सो ऐसा मत सोचिए, ठीक है, कि इजी कंपटीशन होगी, ओके ग्रेट। वाइजैग है 66 सीट्स अवेलेबल फॉर डोमिसाइल, ओके, और ज़्यादातर सीटें आर फॉर SC ST OBC, सो दे डोंट हैव ऑल इंडिया SC ST, एंड लुक एट देयर NRI फीस, इट इज ओनली 4 लाख रुपीज, ओके, ठीक है। आंध्र प्रदेश की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है, दिस इज व्हाट दी यू कैन से वाइजैग का बात हो रहा था अभी हमने, बराबर है, दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन, बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दिस इज योर MNLU मुंबई, Maharashtra National Law University. I believe it's a wonderful university, wonderful college. They have 95 seats available for, you can say, domicile.
जिसमें जनरल में कोई डोमिसाइल नहीं है पर सब कुछ रिजर्वेशन वाला है। SC, ST, OBC में तो इनके पास बड़ी लिस्ट है ना। तो आप देखिए आपकी कौन सी कैटेगरी बनती है तो फायदा करेगा। आपका NRI स्पॉन्सर का 30 सीट्स है और उसमें आपका फीस होगा 80,000 प्लस $15,000, $15,000। ओके, ग्रेट। नागपुर के पास सिमिलर यू कैन से रिजर्वेशन जो भी है उनके पास, दैट इज ऑल यू कैन से कनेक्टेड टू यू कैन से डोमिसाइल, दैट इज 23 सीट्स फॉर जनरल। SC के लिए 8, ST के लिए 12, OBC के लिए 11, EWS के लिए 6, दैट इज ऑफ द नागपुर इज। औरंगाबाद goes on the exactly same way। BLLB, they have 2 program, BLLB and BBLLB। ओके, दोनों में 60 सीट्स अवेलेबल है तो आपको बिल्कुल आइडिया लगेगा। शिमला के पास भी एग्जैक्टली सेम 60 सीट्स अवेलेबल है। दे हैव 25% यू कैन से रिजर्वेशन। दे हैव NRI फीस विच इज 8,50,000 रुपीज। ओके, सो दिस आर वंडरफुल। दे हैव 2 प्रोग्राम, BA एंड BBA। जबलपुर हैज 120 सीट्स, उनमें जो भी रिजर्वेशन है SC, ST, OBC ये सब उनका वापस यू कैन से सभी वही रिजर्वेशन है। सोनेपत, ठीक है, 25% यू कैन से उनके पास अवेलेबल है। NRI का कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, उन्होंने कुछ क्लियर कट बोला नहीं है, सो वी हैव नॉट मेंशन इट एंड दिस इज 188 है ना, 1,88,000 इज दी फीस। ओके, ग्रेट। सो आई थिंक this is a complete information from my side। okay, I believe this is comfortable for you। ठीक है, I repeat one more time for you, when you fill the form make sure that you go through your individual NLU की जगह, वहाँ पे आप कौन सी कैटेगरी में आते हो उस कैटेगरी का आप सर्टिफिकेट बनवा के रखो। एंड व्हेन यू फिल द फॉर्म काइंडली मेंशन दैट कैटेगरी वेरी क्लियरली। ठीक है, ये सबके लिए कॉमन सेम सीटें नहीं है, कैटेगरी वाइज अलग अलग सीटें हैं, सो यू हैव टू बी केयरफुल। ठीक है, ताकि आप अननेसेसरी फंसो नहीं। इज दैट वेरी क्लियर? आई होप दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल टू यू। Yes, great. Thank you very much for watching this. In case you have any question, any query, feel free and ask me. I will be more than happy to respond to that query. Okay? Thank you and all the best.